So we are going to start a very important topic with respect to your means and your interview also. Okay? Indian society. This forms the part of your general studies paper 1. GS paper 1. 250 marks GS paper 1. और अब हम अभी देखेंगे with the help of questions कि हमारी सोसाइटी में कितने मार्क्स आते हैं. But first, why Indian society? Okay, why Indian? Society. Because this is the practical test of you being an administrator. You have to deal with India as a society. ठीक है? एक होता है political entity, economic entity, that is something else. But जो ground level पे काम होगा आपका, you will deal with India as a society. ठीक है? You should know as an administrator what type of society we have. What is the diversity in our society? As an administrator, you should then respect the diversity. ठीक है? आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, and you are an administrator, you have a very narrow mind. आपका दिमाग जहन बहुत कम है, ठीक है? And you will treat the people from other religion, other caste, other race, other ethnicity. You will be biased towards them. ठीक है? When you have the correct understanding of your Indian society, how we are tolerant from earlier times, that tolerance will be incorporated into you. ठीक है? बात समझ में आ रही है बात? How we need to respect our diversity, keeping in mind the unity. Unity के साथ साथ we have to respect the diversity of the country. Multi-religious diversity, ठीक है? Multiple ethnic groups are here, you have to respect. Multiple races are here, you have to respect. Regional diversity is here, you have to respect. ठीक है? I am often telling you this phrase. बहुत बार बोल चुका हूँ मैं. You are, मैं खाली दो का एग्जाम्पल लूंगा. You are a civil servant or an IAS IPS officer. You are having your religion or your race or your ethnicity or your region. आपका अपना रिलीजन होगा, अपनी रेस होगी, अपनी कोई एथनिसिटी होगी, अपने किसी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है? ये सब कुछ आप में है एज एन इंडिविजुअल. बट व्हेन यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, योर रिलीजन, योर रेस, योर एथनिसिटी, योर रीजन इज द रीजन और रिलीजन और द रेस ऑफ दैट पर्सन जिसको आप सर्व कर रहे हो. Once you will keep this mindset, the maximum problems in our society will be solved. ठीक है? The maximum problems in our society will be solved, it will be eradicated. You are a Hindu when you are dealing with a Hindu. Don't keep religious biasness at that time. आपका personal faith belief अलग है. उसकी problem solve करने में you are having that mindset. Keep yourself in his shoes. He is from South India, you are from North India. You are from South India while dealing with a South Indian. You are from Northeastern India while dealing with a Northeastern Indian. ठीक है? समझ आ रही है बात? You are from that caste while dealing with the person from that particular caste. अगर ये mindset बन गया तो सारी problems solve हो जाएंगी. Maximum problems. समझ आ रही है बात? And for this we need to understand our characteristics of our society. समझ आ रही है बात? Plus ये तो हो गया जनरल. Plus this Indian society is a very very important topic with respect to your general studies. हम यहाँ आए ही किस चीज के लिए हैं? एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए. जनरल स्टडीज पेपर 1 उसमें ये बहुत ही important टॉपिक है. सबसे पहले we will go through the syllabus of Indian society. This is your general studies paper 1. This section which I have demarcated here, okay, this is the syllabus of your society. It reads salient features of Indian society, diversity of India. Second, role of women and women's organization. Yeah. Population and associated issues.
ये तो हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि इस साल पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ हुआ है, ठीक है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, दिस वी हैव डन। ये वही है जो हमने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में कर चुके हैं। अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, very important topic because we are having a transition in our society. We are moving towards urbanization, towards westernization, towards modernization. अब ये westernization क्या है, modernization क्या है, इसमें difference है, वो भी हम देखेंगे आगे when we reach to the topic. Effects of globalization on Indian society. When the first topic is salient features of Indian society and diversity of India, ये समझ लिया। फिर जब आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन दिस सोसाइटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर इंडियन सोसाइटी। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये सब कुछ बहुत ही एक्सटेंसिवली वी विल कवर। बट बिफोर कवरिंग दिस वी विल गो थ्रू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। You have the year 2021. You have questions from Indian society 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questions from Indian society in 2021. You have 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You have 9 questions in 2020 from Indian society. ऐसे ही 8-9 questions in 2019. ऐसे ही 7-8 questions in 2018. On an average, you have 6 to 7 questions every year on this topic. Every year on this topic you have 6 to 7 questions. It means कि ये afford ही नहीं कर सकते आप इसको lightly लेना इंडियन सोसाइटी को, हो ही नहीं सकता इसके बगैर क्वालिफाई, सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो you should keep the seriousness of this subject in mind while dealing with the subject. Now sources, कहाँ से पढ़े सर? No book for Indian society. There are NCERTs. There is Human Geography of Geography. क्लास 12 ह्यूमन जियोग्राफी है एक बुक वो, और इंडियन सोसाइटी पे एनसीईआरटी क्लास 12 की, बट वो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए, स्टूडेंट को लगता है कि दैट वी स्टडीड, ठीक है। देयर इज नो वन बुक फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस इज अ क्लियर कट थिंग। अब वहां से यहाँ से हर एक बुक से उठाकर आई हैव प्रिपेयर्ड दिस सब्जेक्ट, और वो मैं आपको बता दूंगा। You need to stick with the class notes यहाँ पे। I am giving you a guarantee, class notes plus वो आपका है, अपना आप effort, because the social issue current affairs are very much in news. Women related development, old age related development, developments with respect to disabled, ठीक है, family related issues, globalization issues on our Indian society। इसमें क्या आते हैं? एडिटोरियल्स, इस पे आपकी न्यूज आती है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, प्लस योर क्लास नोट्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। इससे बाहर आप नहीं जाओगे। और इसमें इफ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आई सजेस्ट यू वन मोर थिंग फॉर सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज को पढ़ने के लिए they are beautifully written articles on the Live Mint, नाम सुनेगा नहीं, या The Wire, these are news outlets, ठीक है। Live Mint और The Wire, इनकी न्यूज़ें नहीं पढ़नी है। इस पे जिस टाइम सोशल इशू पे कोई टॉपिक एडिटोरियल आएगा वो आपको पढ़ना है और नोट डाउन करना है, सोशल इशू रिलेटेड। You can have the online subscription of the Wire or the Live Mint, उससे आपको notifications आती रहेंगी। जो ही आपको social issue related notification आई, you click over that, you make the notes, you study that, that becomes your asset। बाकी जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस है, वो अलग है, वो जनरल है।
फॉर सोशल इश्यूज आई एम रिकमेंडिंग यू लाइव मिंट एंड द वायर, इसके आर्टिकल्स। समझ आ रही है बात? Tell me some of the first we will start with the salient features of Indian society, जो आपके सिलेबस में है। Tell me the salient features of a typical Indian society. कुछ तो बताओ। Very good. You won't see the system of joint families west bahar, ठीक है? Joint families, caste system. You have diversity. You have patriarchy. Broad. इससे आप आइडेंटिफाई दूर से कर पाओगे दैट दिस इज इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय जॉइंट फैमिली, इज गवर्न्ड बाय पैट्रियार्की, इज गवर्न्ड बाय डाइवर्सिटी, इज गवर्न्ड बाय कास्ट सिस्टम। समझ आ रही है बात? दिस वी हैव टू स्टडी, इससे भी ज्यादा है और सेलेक्ट एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी वन बाय वन। दिस विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ salient features of Indian society। फिर जो ही ये आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया इसमें सब कुछ, फिर इस पे इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के, इस पे इफेक्ट पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन के, माइग्रेशन के। ठीक है, क्या होता है इस पे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड था हमारे पास। समझ में आ रही है बात? Can you give me examples of this diversity in India? India is a diverse nation. How? कैसे? So different religions, sir. Yes. Culture, different. We have different religions, different cultures. ठीक है? Different religions, different cultures, different race. ठीक है? Different ethnic groups. ठीक है? Regionalism. ठीक है? This is the diversity in India. And keeping this diversity in mind, we have to assure the unity of our nation. ठीक है, उसमें क्या hurdles आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, everything we will deal with. ठीक है, these are the broad heading of salient features of Indian society. Under this you have to understand the concept of joint families, and the concept of joint families say we are in a transition to nuclear families. What were the pros and cons of joint families? What are the pros and cons of nuclear families? तो हो क्या रहा है, अब वापस हम न्यूक्लियर से जॉइंट आ रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए फैमिली वो हम देखेंगे, एवरीथिंग। कास्ट सिस्टम कैसे आया, क्या हुआ, किस चीज के लिए पहले कास्ट था, लेकिन अब इसका क्या फॉर्म हमको देखने के लिए मिल रहा है, एवरीथिंग वी विल डील। ठीक है, डाइवर्सिटी इशू में हम सेक्युलरिज्म देखेंगे, रीजनलिज्म देखेंगे, पैट्रियार्की में भी हम देखेंगे व्हाट इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। देयर वाज अ सर्वे, आई डोंट रिमेंबर सर्वे, शायद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था। There was a survey, शायद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे conducted in 2016-17 I guess. According to this survey, 89%, कितना? 89% of the women who are earning themselves have no right to spend this money, जो वो खुद कमाते हैं। You know, this is इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपने कर दिया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने कर दिया, यू आर लैकिंग इन सोशल एम्पावरमेंट। ये एक अलग से टॉपिक है आपके सिलेबस में, सोशल एम्पावरमेंट। Despite they are earning themselves, they have the qualification, उन्होंने पढ़ा, एग्जाम क्वालिफाई किया या कुछ भी किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कहीं पे भी है, they are earning, they are getting their salary from their hard earned that, वो जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, but they are not being able to spend out of their own salary. Why? Because the society is like this, patriarchy, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए एक मुहिम उठी, फेमिनिज्म 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 फेमिनिज्म,
उसके ड्रॉबैक्स है बहुत सारे, वो कुछ और चीज के लिए, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के लिए उठी थी, लेकिन दैट हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न ना, वो कुछ अलग अब बन गया है, ठीक है, वी विल स्टडी दैट आल्सो, वो क्या हुआ है उधर, everything we have to study, make a framework in your mind like this, ठीक है. The first we are going to start is the definition of the society, ठीक है. What is a society, बताओ मुझे. Our first topic is what? Joint family. वहां तक पहुंचते पहुंचते अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज अ सोसाइटी. जो एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड रेगुलेशंस पे चले और एक कम्युनिटी बनाते हैं. गुड. देखो, मैन इज अ सोशल एनिमल, सुना है कभी? Yes, sir. बचपन से पढ़े आ रहे हैं. इसका मतलब है मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, मैन हैज टू इंटरेक्ट, ये इसकी फितरत में है, ठीक है. विदाउट इंटरेक्शन द पर्पस ऑफ हिज लाइफ इज नॉट कंप्लीट, और ये अच्छे से जी भी नहीं पाएगा, ठीक है. मैन इज अ सोशल एनिमल एंड he is going to interact with people, he is going to interact with people. लेकिन ये people के साथ interact करेगा. For example, you are in this class, you are interacting with each other, you are interacting with each other, but the purpose is UPSC. अगर इसके बगैर कोई पर्पस है, आपका यहाँ आना इज वेग. अगर यहाँ पे you are interacting with each other and the purpose is UPSC, you are developing a relationship, you are developing a Relationship. relationship based on a defined pattern. इसके बगैर आप कोई बात नहीं करोगे यूपीएससी के बगैर, क्योंकि आपकी दोस्ती ही इसी बात पे हुई है, ठीक है. एंड दिस नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स, दिस इज अ सिंगल, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स ऑन दिस डिफाइंड पैटर्न्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ सोसाइटी. ये सोसाइटी बन गई किनकी? ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाले, इनके अलग ट्राइड्स होंगे, ठीक है. ऐसा पढ़ना, वैसा करना, रात को जागना, सुबह इतने बजे उठना, 8 घंटे 12 घंटे, इनका एक डेफिनेट सेट साइलेंट फीचर्स बन जाएंगे, जैसे इंडियन सोसाइटी के हैं. समझ में आ रही है बात? तो द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन अ डेफिनेट पैटर्न और अ डिफाइंड पैटर्न गिव्स राइज टू अ सोसाइटी. फिर इसमें आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी के, वो आगे देखते हैं. फर्स्ट यू राइट दिस. सोसाइटी, it refers to the network of relationships. network of relationship मतलब इंडिविजुअल का कुछ नहीं, बहुत सारे एंटिटीज जो होंगे सबका आपस में. it refers to the network of relationship developed on the basis of developed on the basis of patterned interactions, developed on the basis of patterned interactions. Patterned interactions is known as a society, is known as a society. ठीक है. क्या इंडिया को हम सोसाइटी बोलेंगे? इंडिया इज एन amalgamation of different societies. क्योंकि सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन कल्चर. This common culture is not with respect to India, ठीक है. India has multiple cultures. We can say India is an amalgamation of different societies. और इन डिफरेंट सोसाइटीज को आपस में जोड़े रखना, इसमें प्यार मोहब्बत रखना, इसको लॉज फॉलो कराना, इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब. एंड यू एज अ पब्लिक सर्वेंट्स आर एंट्रस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी.
कॉमन कल्चर वाले ग्रुप्स होंगे अलग 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 अलग, और उन्हीं कॉमन कल्चर का एमेलगमेशन इज इंडियन सोसाइटी. The concept of joint families in southern India will be different, northern India will be different, even if religion is same. ठीक है? For example, in Kashmir, Muslim majority area, and in India, some Muslim majority area, the religion is same, but the culture is different, totally different. ठीक है? दोनों में आसमान जमीन के कल्चर का फर्क है. That will create a separate society. यहाँ वाली separate society, कोई और religion वाले separate society. So where there is a common culture, we will club them together in a single society, and then the amalgamation of all those societies give rise to Indian society. Because Indian society does not have a common culture, इसको as a whole हम society नहीं कहते हैं. पहली myth यहाँ पे हम break करेंगे. You right? India is amalgamation of multiple societies. India is an amalgamation of multiple societies. हमारा syllabus का कोई भी topic अभी start नहीं हुआ है. This is just the background. India is amalgamation of multiple societies. Since we do not have a common culture, we have a composed culture. Since we do not have a common culture, we have a composed culture. We do not have a common culture. We have a composed culture. Right? There are two types of sources. There are two types of sources. There are two types of sources of change. There are two types of sources of change. In a society, कितने तरीके के sources है change होने के? दो type के. Number one, endogenous. 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 अगर नाम से जाएंगे, it means within. ठीक है? विदन. एक सोसाइटी है, उसके अपने ही लोग उसी सोसाइटी के दायरे में रहकर कुछ चेंज लाते हैं अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में. ठीक है? दैट चेंज इज रेफर्ड एज एंडोजेनस. या एक सोसाइटी है, बाहर वाला कल्चर उस पे इफेक्ट डाल रहा है. समझ में आ रही है बात? और उनके कल्चर चेंज हो रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज एक्सोजेनस. Right? Endogenous. All those factors which emerge from within the system, For example, ancient Indian society क्या थी? Based on Hinduism. लेकिन Buddhism and Jainism emerged from within the Indian society, who were the followers of Hinduism. ठीक है? The social change was brought from within. You write, for example, Buddhism and Jainism. These are the examples of change, societal change from within. Buddhism and Jainism. Exogenous. All those factors which emerge from outside the system. All those factors which emerge from outside the system. All those factors which emerge from outside the system. For example, ब्रिटिश रूल से हमारे कल्चर में क्या चेंज आई? अगर कुछ आई इनसे इन्फ्लुएंस होकर, या हमने इनसे कुछ सीखा, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सोजेनस. ठीक है? यू हैव सूफी मूवमेंट. दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ठीक है? दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. राइट? सूफी मूवमेंट आल्सो, सूफी मूवमेंट एटसेट्रा.
जैसे बुद्धिज्म ने चेंज लाई, जैनिज्म ने चेंज लाई, वैसे ही चेंज सूफीज मूवमेंट ने लाई या ब्रिटिश रूल ने लाई, लेकिन दे वर एक्सटर्नल एजेंट्स एंड दिस चेंज वाज फ्रॉम विद इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैन यू टेल मी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी? मोटा मोटा सा कुछ भी बता दो। व्हाट वाज द सोसाइटी बिफोर एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल? सोसाइटी में क्या चेंज आ गई? जस्ट जो भी आपके दिमाग में आए। सबसे पहले वेस्टर्नाइजेशन, मतलब हम्म। मतलब उनके मतलब ना रोजमर्रा की जिंदगी का तरीका चेंज हो गया। अगर पहले कुछ था ट्रेडिशनली, वो चेंज रिगार्डिंग क्लॉथ्स। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको एक ब्यूटीफुल तरीके में हम लिख सकते हैं। हम पहले देखेंगे व्हाट वाज द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट उनके आने से पहले। फिर जब वो आए उन्होंने चेंज कहां पे लाई, और अब हमारी सोसाइटी क्या है, मॉडर्न जो है। अब ये था, ये चेंज इसमें आई तो हम बन क्या गए, ठीक है। तो ट्रेडिशनली हम क्या थे, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वी यूज्ड टू फॉलो? ट्रेडिशनली हम जो है बिलीव करते थे सुपरस्टिशियस सोसाइटी थी। डोंट रिफ्लेक्ट योर सोसाइटी इन बैड टर्म्स, ठीक है। पूरी सोसाइटी ऐसी नहीं थी। कहो कि वी हैड वेरी मच लव फॉर आवर रिचुअल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब वो वाले लोग जो थे आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनमें सेंस नहीं थी, उनमें वो नहीं था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। You should give it a different name, that we had respect for our ritual aspects. We were not questioning the ritual aspects based on intellect and all. हमारा प्राइम था, हमारे ritual aspect में ये है, we will do it, ये हमारे सर पे है, ठीक है। This was the traditional concept in the society. Next, we believed in a hierarchical pattern, ठीक है। Hierarchical pattern. We had king, we had the religious priests, ठीक है। आप चाह के भी वहां नहीं पहुंच सकते, या तो आपको पैदा ही होना है वहां, तब जाकर ऐसा होगा। एक स्ट्रेटिफिकेशन वाज देयर इन सोसाइटी, कॉमननेस नहीं थी, हर कोई एक ही लेवल पे नहीं था। दिस वाज द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, ये हैंडमेड चीजें थी। अरे वो छोड़ो ना, वो छोटी छोटी चीजें। सोसाइटी एज अ होल, इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमिक में आप देखोगे इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी। सोसाइटी एज अ होल, वी वर कम्युनिटी और कलेक्टिव ओरिएंटेड। इंडिविजुअलिज्म नहीं था, मैं हूं बस मुझे ठीक रहना है, बाकी बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं था, ठीक है। वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी was the prime objective in our traditional aspects. किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो पूरे गांव की प्रॉब्लम थी, वो खाली उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। आज घर के फैमिली मेंबर की कोई प्रॉब्लम दूसरे फैमिली मेंबर की नहीं होती, ठीक है। There has been a transition, वो भी हम स्टडी करेंगे, वो कैसे कैसे स्टेप वाइज आ रहा है, ठीक है। और फिर हम उस ट्रांजिशन से अब वापस जॉइंट फैमिली की तरफ आ रहे हैं, वो भी देखेंगे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव ओरिएंटेशन और द कम्युनिटी ओरिएंटेशन वाज देयर। दिस वर द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। देन व्हाट चेंज वर ब्रॉट? मॉडर्न एजुकेशन, थी ना। जिसके साथ हमें मतलब कोई लिंक इससे पहले नहीं थी। इफ we were only studying our traditional knowledge based on our ritual aspect, our holy texts, we were studying that. The modern education was infused in India by the British, ठीक है। और क्या इन्होंने infuse किया modern education से?
ये सेक्युलर थी। क्या थी? Secular. This was the major effect of education on Indian society, that the Britishers, they incorporated modern education but on the lines of secularism. You will see जो भी हमारे लीडर्स थे आज़ादी की लड़ाई में, ठीक है, they were oriented towards secularism. The framers of constitution, they were oriented towards secularism because they were educated through the modern education that was in turn based on the path of secularism. पहले क्या था, आप पढ़ते थे वेदास, कोई पढ़ता था कुरान, कोई हदीस, ठीक है, कोई भगवत गीता, and everyone was seeing the society with the prism of his religion. अब ऐसा नहीं है. The modern education was infused with a touch of secularism by Britishers. What else? What else? हायरार्किकल पैटर्न था उसको हमने चेंज किया, वो मोर और लेस अभी सेम रहा ब्रिटिशर्स के बाद. उसके बाद वो जब गए, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सेम प्लेटफॉर्म में लाया, तब वो हायरार्किकल पैटर्न खत्म हुआ. अभी भी है लेकिन सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वी हैव अचीव्ड दैट थिंग. इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट में अभी भी है, देयर वी हैव स्ट्रैटिफिकेशन. वो आगे देखना है हमें, वो क्या है. इन्होंने लाई अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स बन गए इनके आने से, ठीक है. उससे माइग्रेशन हो गई, कंसेप्ट आ गया लोगों में कि हम बाहर बैठ के भी कमा सकते हैं, घर से दूर जाके भी कमा सकते हैं. तो जो हमारा कंसेंसस था जॉइंट फैमिली का, अब वो जॉइंट फैमिली के टूटने के दो तरीके हैं, ठीक है. एक तो जॉइंट फैमिली आपने न्यूक्लियर कर दी बेस्ड ऑन इनकम, कि आपको कमाने का प्रोस्पेक्ट कहीं पे अच्छे से मिल रहा है. दूसरा, आपको इनहेरेंट आपको इनके साथ नहीं रहना, वो अलग एस्पेक्ट है. वंस वी विल स्टडी जॉइंट फैमिली, उसमें देखेंगे हम ये दोनों एस्पेक्ट. इनकम की वजह से आप अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जा रहे हो, या म्यूचुअल हेट्रेड की वजह से आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से आप जॉइंट फैमिली से बाहर जा रहे हो, ठीक है. वो दूसरा एस्पेक्ट है. तीसरा एस्पेक्ट, यू आर बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट. अब आपके पास बहुत पैसा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है. फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन और मॉरल सपोर्ट इज नॉट वर्दी टू यू एनी मोर. आप निकल रहे हो वहां से. समझ आ रही है बात? ये इशू है हमारी सोसाइटी के साथ. जब भी स्पेशली वुमन में बहुत सारे इश्यूज हैं. पहला इशू है वुमन का आज की सोसाइटी में. कीप इन माइंड, ये देख लेना, whenever woman is economically empowered, whenever woman is economically empowered and she knows about her rights, सबसे पहले इस औरत में से क्या जाता है? that are clothes. ये बात याद रखना. see this, she feels that her economic or social empowerment is getting free from the clothes and all. ये पहला प्रॉब्लम है with respect to the mindset. Freedom from clothes. You are getting freedom from clothes, then you will get freedom from your family. उसके बाद freedom from your husband and everything. You want to become independent, and at last you end up your life having 36 pieces of your body stored in a fridge. ठीक है? What happened to Shraddha? Have you learned about the case? Yes. क्या हुआ? Her parents were telling her, मत रहो इसके साथ, ऐसा नहीं करते, डोंट बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता. बट शी वाज लाइक, क्या, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई एम मॉडर्न, आई एम वो, ये सब ट्रेडिशनल टाइज से वो बाहर निकली. वो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन. दूर से फैमिली को पता चलता है व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू, एंड यू डोंट हैव द सोशल कंट्रोल ओवर यू. देन डू एज एनिमल्स डू, जो भी करना है कर लो. एंड उस बेचारी ने भुगत लिया. फिर शी वाज विद अ मर्डरर, a butcher, ठीक है. ill mindset, ये उसको दिखा नहीं. 36 pieces, 18 days और 18 months, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतने टाइम तक फ्रिज में. How he tore
her body apart, मतलब कैसे? And why? Because you are getting independent. ऐसा नहीं है आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, बट विद मॉरल वैल्यूज. You should have integrity, moral values in you. और उसके बाद आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिले, सोशल एम्पावरमेंट मिले, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, दैट इज फाइन, यू विल रीच द स्काई. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज नॉट a naked woman is standing right next to an Audi का हो रहा है ये एडवर्टीजमेंट, a naked woman is standing right next to Audi, इस कार को खरीदो. दिस इज नॉट द एम्पावरमेंट फॉर दैट वुमन. कल्पना चावला वाज द एम्पावरमेंट. ठीक है, आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ इज द एम्पावरमेंट. ये एम्पावरमेंट नहीं है कपड़े उतार के यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अ प्रोडक्ट, बाय दिस बाय दैट. देयर इज कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन गोइंग ऑन द नेम ऑफ सोशल एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ वुमन. वुमन इज मेयर अ कमोडिटी. यहाँ देखो, आप दुकान खोल लो कोई भी कपड़े का और दिस रेडीमेड गारमेंट्स एंड ऑल, यू आर हायरिंग नाउ गर्ल्स, वो आपके वो प्रोडक्ट पहन के मॉडलिंग कर रहे हैं एंड दे आर टेलिंग यू टू बाय दिस फेरन और बाय दिस थिंग. दिस इज नॉट सोशल एम्पावरमेंट, दिस इज द कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन. एम्पावरमेंट इज समथिंग एल्स. ठीक है, इसने चेंज लाई हमारी सोसाइटी में ब्रिटिश के आने से. अब कैसी सोसाइटी है हमारी सोसाइटी है फोकसिंग ऑन इंडिविजुअलिज्म. अब वाली, ठीक है, मटेरियलिस्टिक. ठीक है, हमारी सोसाइटी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. रिचुअल एस्पेक्ट्स पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम रैशनल क्वेश्चन करते हैं. यू आर टेलिंग मी टू डू दिस, गिव मी द लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, दिस वाज द चेंज दैट वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स है. ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऐसा, हमने ऐसा किया, उसके बाद आज की सोसाइटी ऐसी है. दिस इज अ ब्रॉड दिस अंडरव्यू ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी. यू राइट क्वेश्चन. अभी हमने टॉपिक स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया. हमारा पहला टॉपिक जॉइंट फैमिली है. इंडिया नीड्स मॉडर्नाइजेशन. इंडिया नीड्स मॉडर्नाइजेशन. India needs modernization and not westernization. And not westernization. Full stop. Critically examine. इसमें ये concept आपको समझ में आएगा commodification of women का. India needs modernization, not westernization. Full stop. Critically examine. Can you write something? ऐसे बोल सकते हैं. सर इसमें है कि इंडिया जो है ना उसमें नो डाउट मतलब इंडिया जो है अभी जो हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए ना कि वेस्टर्नाइजेशन. दैट मीन्स कि मतलब ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन हमें मॉडर्न करनी है अपनी, या हम मतलब ज़रूरी है वो चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी हो रही है वो ख़त्म करनी है. बट हमें अपने इसमें इंडिया में ये नहीं है कि पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हमारा जो है वेस्टर्न का हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो या चाहे वो हमारा कोई भी चीज़ हो जो हम वेस्टर्न का अप्लाई कर रहे हैं अपने आप पे. मॉडर्नाइजेशन और वो दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स है. और हाँ ये सच है कि हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए रादर कि वेस्टर्नाइजेशन. We don't want a blind emulation of West. ठीक है, we want to become modern with respect to scientific development, with respect to rationality, ठीक है, with respect to urbanization, but keeping in mind our cultural values.
our goals, traditional goals, ठीक है, our values should be there. आप अभी भी बड़े को देखकर you should greet him, greet her, okay? बस में चढ़ के अभी भी if someone is standing elder than you, you should leave your seat and offer your seat. These are the traditional values. ये आप western society में, लेकिन now our society is becoming westernized. We have to mark a line. इनको कहना है कि that westernization is not required. Modernization is required. ठीक है? और सबसे ज्यादा exploit इस बात पे women होती है. In the name of westernization, ठीक है? हम इसको कह रहे हैं कि चलो वो करो, ये करो, ये करो. You are being modernized. लेकिन वो modernization का definition नहीं है. That is westernization. आज के हमारे ये यहाँ पे pranks हो रहे हैं. Elder people are walking and they are throwing those पानी की वो balls उन पे या prank कर रहे हैं कुछ on those elders, and the people who are watching this are reacting with a laugh emoji and they are enjoying the scene. It means the cultural value of our society is eroding. We are lost somewhere else और इससे एक society पूरी खराब हो जाती है. ठीक है? We need modernization, but we don't need westernization. It does not mean westernization is a negative concept. It might be positive for them, मगर हमारे cultural values में वो fit नहीं बैठता. ठीक है? We don't want to lose our identity. We want to keep our identity intact and be modern. समझ में आ रही है बात? तो now we are going to start the first topic of our Indian society, that is family. करें आजकल सर जो अभी लिखा वो नहीं पढ़ा, वो नहीं लिखना था. ये मॉडर्नाइजेशन वाला No, sir, it's जो ना ये before change. that was just for your understanding. If you want to write it in your words, you can write it. ठीक है? कल करते हैं फिर. We will start from the first topic tomorrow, that is family.